Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4 of your class 5 science, that is the nervous system. You know, nervous system plays an important role in our body. We do day-to-day activities with the help of our nervous system only. So let's begin with this lesson. Which sense organ would you see to do the following things? Would you use to do the following things? किस सेंस ऑर्गन को यूज करोगे आप ये चीजें करने के लिए? टू लुक अ बुक को देखने के लिए किस सेंस ऑर्गन का यूज करोगे? यू विल यूज योर आईज. To listen to music, for listening music, which sense organ you will use? You will use your ears. To taste the food, which sense organ you will use? You will use your tongue, because your tongue has many taste buds. Now, tasting, smelling, seeing, hearing, running, moving, sleeping, thinking, laughing, writing. You could not do any of these activities without nervous system. ये activities आप nervous system के बिना नहीं कर सकते. The nervous system is made up of our brain. किससे बना होता है? हमारा brain से spinal cord and a large network of nerves होती हैं. This system works every moment of the day, non-stop, and controls the working of all the other system of our body. ये सिस्टम नॉन स्टॉप वर्क करते रहता है, पूरे दिन वर्क करते रहता है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है, सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके रखता है. Now let's talk about the brain. Brain क्या है? It is the master of our body. It is the main part of the central nervous system. CNS, central nervous system का main part है. It is situated inside the heart bone. skull कहाँ पे situated है? आपके हार्ट बोन स्कल के अंदर सिचुएटेड है. द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज फिल्ड विद अ फ्लूइड. जो स्पेस होता है स्कल और ब्रेन के बीच, वो किससे फिल्ड होता है? फ्लूइड से फिल्ड होता है. दिस फ्लूइड एक्ट्स एज अ कुशन एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन अलोंग विद द आउटर प्रोटेक्टिव हार्ट बोन. ये जो फ्लूइड है कुशन की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को आउटर प्रोटेक्टिव हार्ट बोनी लेयर ऑफ द स्कल. नाउ The brain receives information from the sensory organs. Brain को जो भी information कि आपको गर्म कोई चीज hot लगी है, कोई चीज आपको ठंड लगी, कैसे पता चलता है? आपके sensory organs से पता चलता है. सिग्नल कौन पहुंचाता है? सेंसरी ऑर्गन्स पहुंचाते हैं आपके ब्रेन तक, and responds to them by sending instruction through nerves to the muscle for functioning. एक रिस्पॉन्ड किससे करते हो? जो नर्व्स आती है वो सिग्नल भेजता है आपके नर्व्स के थ्रू आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. So it also stores information and help us to take intelligent and more suitable decision based on past experience. वो क्या करता है? हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. जो हम पास्ट में जो चीजें कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, या जो चीजें हमें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है. Now do you know the brain resembles a walnut in outer appearance and it weighs around 1.5 kg. जो आपका ब्रेन की कैसा लगता है? वॉलनट की तरह लगता है आउटर अपीयरेंस में, और उसका वेट कितना होता है? 1.5 kg का होता है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेरिब्रम फर्स्ट. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेरिब्रम. जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का वो क्या है? सेरिब्रम है. It's dome shaped surface. कैसा है? डोम शेप का सरफेस है, covered with deep ridges and grooves. Deep ridges और grooves से covered रहता है ये. It controls the working of our eyes, ears, nose and tongue. हमारे eyes की, ears की, nose और tongue की working को control करके रखता है. It also controls our voice. हमारी voice को भी control करता है. It is the center of intelligence. क्या है हमारा brain? Center of intelligence कहते हैं इसको. cerebrum को हम center of intelligence कहते हैं. It helps us to think, learn, remember and reason out things. जो भी आप चीजें सोच पाते हो, जो भी लर्न कर पाते हो, रीजन दे पाते हो, थिंक जो चीजों को, वो क्या किस वजह से होता है? सेरिब्रम की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. नाउ सेरिबेलम. सेरिबेलम क्या है? Below the cerebrum, it is the cerebellum. Cerebrum के बिल्कुल नीचे क्या है? cerebellum होता है. It coordinates the action of muscles and makes them work together. वो coordinate करता है muscles को, उनके actions जो होते हैं उनको coordinate करता है muscles के, और वो एक साथ work करते हैं. It helps us to balance our body and keeps us in upright posture. वो हमारी body को balance करके रखता है और हमें upright posture में रखता है.
सो योर सेरिबेलम वर्क्स व्हेन यू रन, सिट और मूव। जो आप रन करते हो, मूव करते हो, वर्क करते हो, रन करते हो या कुछ भी करते हो, सिट कर बैठते हो या मूव करते हो, तो आपका सेरिबेलम वर्क करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेड्यूला। मेड्यूला इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन स्टेम। मेड्यूला को क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। वो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है। इट कंट्रोल्स आवर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड मूवमेंट्स लाइक ब्रीथिंग, आवर हार्ट बीट्स, द मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। वो हमारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट्स हो गया, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हो गए। All these actions are done by involuntary muscle। ये जो actions होते हैं हमारे involuntary muscles करते हैं इसको, and they are controlled by the medulla। और medulla इसको control करके रखता है। It works even when we are asleep। Such actions are known as involuntary action। ये जब वक्त करता है जब हम सो रहे होते हैं, और इन actions को क्या कहते हैं? Involuntary actions भी कहते हैं। Our brain needs a continuous supply of oxygen to function properly। हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की, जिससे वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। if this is cut off for even for a few seconds, we may become unconscious। अगर हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं फ्यू सेकंड्स में भी। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, it is present and remains protected inside the vertebral column। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? vertebral column में होता है, प्रोटेक्टेड रहता है vertebral column में। It runs down from the medulla to the lower end of the vertebral column। कहाँ से रन डाउन करता है? आपके medulla से और lower end तक आता है आपके vertebral column तक। Now it is a rod-like structure that spread out spinal nerves to all parts of our body। जो आपकी spinal cord होती है, vertebral column होता है, rod-like structure होता है, spread out करता है आपकी सारी बॉडी नर्व्स को स्प्रेड आउट कर देता है आपकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। नाउ ऑल इनवॉलंटरी मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। जो भी हमारे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं सबको कौन कंट्रोल करके रखता है? मेड्यूला कंट्रोल करके रखता है। सम आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड आल्सो, और कुछ को स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टच अ हॉट प्लेट एक्सीडेंटली, वी इमीडिएटली विथड्रॉ आवर हैंड विदाउट थिंकिंग अगेन। अगर हम हॉट प्लेट को टच कर देते हैं, हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं कुछ भी सोचे बिना। दिस एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जो एकदम से एक्शन आता है ब्रेन तक तो सिग्नल पहुंचने में 1 सेकंड भी लगता है, बट जो आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बाद, एकदम स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्शन भेज देती है कि आपको ऐसा करना है। एकदम आप अपना हाथ हटा देते हो और कोई चीज गर्म पे लगती है तो though the impulse is sent to the brain too, but the hand is withdrawn even before our brain gets to know about the pain। yes, जब तक ब्रेन को पेन के बारे में पता चलेगा, हैंड तो उससे पहले ही हट गया। Such action that do not involve the brain are called reflex। जो एक्शन जो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते अपने आप में, उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। Now, thus we can see that our brain and spinal cord obtain information from sense organ। जैसे कि हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? सेंस ऑर्गन से मिलती है हमारे। एंड एक्ट थ्रू मसल्स इन 3 ways। और हमारे मसल्स के थ्रू एक्ट करते हैं 3 ways में। लाइक वॉलंटरी एक्शन दैट इन्वॉल्व थिंकिंग। वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है? जो सोचना, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। और इनवॉलंटरी एक्शन दैट आर कंडक्टेड इन आवर बॉडी ऑटोमेटिकली। जो एक्शंस ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हो जाते हैं। And reflex actions that are quick and immediate responses in urgent situation। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो क्विक होते हैं, एकदम से आपको कोई चोट लगी अपना आप हाथ डालोगे वहां से, वो क्विक होते हैं, एकदम अर्जेंट सिचुएशंस में होता है, विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। Now the message or impulses are conveyed from the sense organ to the brain or spinal cord through nerves। जो मैसेज होते हैं, impulses होते हैं, वो कन्वे होते हैं आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। Now let's talk about nerves। Nerves क्या होती हैं? There is a network of thread-like nerves in our body। क्या होता है? नेटवर्क होता है thread-like हमारी नर्व्स का हमारी बॉडी में, that connect various parts of our body to the brain or spinal cord। जो कनेक्ट करता है various parts of the body को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। So just like a thread, it is made up of fiber nerves and are also made up of nerve fiber। जेट थ्रेड की तरह किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है। और नर्व्स भी किससे बनी होती है? नर्व फाइबर से बनी होती है। ईच नर्व फाइबर कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल कनेक्टेड विद ईच अदर। हर नर्व फाइबर में क्या होता है? नर्व सेल होता है जो किससे कनेक्टेड होता है? एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। द नर्व सेल्स आर आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल। ईच न्यूरॉन क्या स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या होता है? डिफरेंट होता है दूसरे अदर सेल ऑफ बॉडी से। A neuron has a large cell body
इन इट्स सेंटर कॉल्ड साइटोन। न्यूरॉन में क्या होती है, लास्ट सेंटर बॉडी होती है, उसके सेंटर में उसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। फ्रॉम द साइटोन सेवरल ब्रांचेस अराइज, साइटोन से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं which are called dendrites, और उनको हम dendrites कहते हैं। So one of these dendrites become very long is known as axon। उनमें से एक dendrite बहुत ज्यादा लंबी बन जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, axon कह देते हैं। The axon of one neuron connects with the dendrites of the next neuron। जो axon होती है वन न्यूरॉन की, वो कनेक्ट करती है डेंड्राइट से दूसरी न्यूरॉन की। Now thus forming a network of nerves। ये क्या फॉर्म करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है किसका, नर्व्स का। Now do you know nerve cell or neurons have a long life, but if they are damaged accidentally, they cannot be replaced by new ones। nerve cell और neurons की होते हैं लॉन्ग लाइफ होती है, अगर वो एक्सीडेंटली डैमेज हो गए वो दूसरे से रिप्लेस नहीं हो सकते। सो दिस इज व्हाई आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सो वेल प्रोटेक्टेड। इसी वजह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतने अच्छे से प्रोटेक्टेड है। नाउ सेंसरी नर्व्स, दीज नर्व्स कनेक्ट सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये जो नर्व्स होते हैं कनेक्ट करती है सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स को हमारे ब्रेन से। दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। एक मैसेजेस कैरी करती है सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक। नाउ द ब्रेन एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स। जो ब्रेन होता है एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन जो उस तक रिसीव हो रही है और इंस्ट्रक्शन सेंड करता है मसल्स को फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन थ्रू मोटर नर्व। एक एप्रोप्रिएट एक्शन करने के लिए किसके थ्रू सिग्नल जाता है, मोटर नर्व्स के थ्रू जाता है। Now the motor nerves carry message from the brain to the muscles। और motor nerves क्या करती है, मैसेज कैरी करती है ब्रेन से मसल्स तक। So there are also third kind of nerves called mixed cranial nerve। थर्ड काइंड की भी नर्व्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड cranial nerves कहते हैं। So which carry out two ways transmission। वो क्या कैरी आउट करती है, टू ways transmission कैरी आउट करती है। they carry messages to the brain or spinal cord। वो brain और spinal cord तक मैसेज कैरी करती है and also to the muscles and glands। muscles और glands तक भी इंफॉर्मेशन लेके जो मैसेज को लेके जाती है। So now you can see, you can understand that as you are studying this chapter, your eyes are sending the images of words written in your textbook to the brain। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपकी जो आईज है वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक भेजती है, आपके ब्रेन तक जा रहा है उससे। सो थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, किसके थ्रू जाती है, वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जा रहा है इंफॉर्मेशन। द सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम आईज टू ब्रेन। जो सेंसरी नर्व्स होती है वो मैसेज कैरी करती है आईज से ब्रेन तक। द ब्रेन आइडेंटिफाइज द वर्ड्स एंड रिकॉल्स देयर प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द स्टोर्ड मेमोरी फ्रॉम प्रीवियस डेज। जो ब्रेन होता है आइडेंटिफाई करता है वर्ड्स को और रिकॉल करता है प्रोनाउंसिएशन जो आपकी स्टोर्ड है आपकी मेमोरी में, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस डेज में जो पढ़ा होता है। When you learn to read, so then it sends instruction through motor nerves to the muscles of the vocal cords। फिर वो instruction send करता है motor nerves के through muscles of the vocal cords and the mouth to produce the appropriate sound। और आपके mouth तक आती है जो appropriate sound produce करे और pronounce करे written words को। Now only this when you are reading this, your brain is storing the fresh information for future use। जैसे आप इसको भी रीड कर रहे हो तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर यूज के लिए। इट हैज अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। यस, आपके ब्रेन की अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। Here is one, do you know more? So the nerve impulses travel at a speed of 120 minutes per second। जो nerve impulses है किस स्पीड पे कैरी करती है, स्पीड पे ट्रेवल करती है 120 मिनट पर सेकंड की स्पीड से, 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है थ्रू नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कनेक्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। और जो नर्व्स होते हैं कनेक्ट करती है आपके सारे बॉडी पार्ट्स को आपके ब्रेन से, जस्ट लाइक द वायर्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर के वायर्स कनेक्टेड होते हैं, सेम लाइक दैट। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.